Morning are more colorful now. Nature seems to have put a new look as Ma Durga blessings. Good morning, one and all present here. Our school director Sushil sir, school secretary Saurabh sir, school administrator K.C. Bharti sir, school coordinator Swati miss, vice coordinator Shagufta miss, cultural head Chunki miss, discipline in charge Deepak sir, and all respected teachers, non-teaching staff, and my dear schoolmates. Durga Ma, the goddess of power, strength, love, truth, and grace, has arrived once again. Let us together welcome her with the warmth of our hearts, and let us pray that the divine blessing of Goddess Durga bring us eternal peace and happiness. Durga Puja is the annual celebration of Hindu goddess Durga, also called Durgotsav. It is one of the Indian grandest festivals traditionally held for 10 days in Ashwin month of Hindu calendar. Goddess Durga is the omnipresent one. She is the personification of the Universal Mother. She is the embodiment of power, peace, and intelligence in all beings. Navratri means 9 days of prayer, 9 nights of joy, with the 9th avatar of Ma Durga blessing on us, with 9 qualities: power, happiness, humanity, peace, knowledge, devotion, name, fame, and health. Charity means mother of devotion and penance, and is associated with Durga in her ascetic phase. Chandraghanta means goddess of demons and is associated with Durga in her form of Shakti. Kushmanda means goddess of cosmics and is associated with the Durga in the form of Mahashakti. Skandmata means goddess of motherhood and children and is associated with Durga in her stage of motherhood. Katyayani means goddess of power and is associated with Durga in her various stages. Kaljatu means goddess of auspiciousness and courage. It is associated with Durga in her form of destruction. Mahagauri means goddess of beauty and woman and is associated with Durga in the form of recovery. Siddhidatu, the name of goddess on the 9th days of Navratri. Durga Puja marks the victory of Devi Durga over the demons mentioned. ঢাক বাজা কাঁসর বাজা উলু দেওয়ার শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদীয়ায় খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা দুর্গা আরে এলো 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 মা দুর্গা ঢাক বাজা কাঁসর বাজা উলু দেওয়ার শাখ বাজা বছর
देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि धूम्रनेत्रे वधे देवी धर्मकामार्थदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्त देहि जगधे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि दुर्गे दुर्गे दुर्गति नाशिनी महिषासुरमर्दिनी जय मां दुर्गे 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 दुर्गति नाशिनी महिषासुरमर्दिनी जय मां दुर्गे देवी दुर्गे जगत जननी तुम्ही मां मंगलकारिणी देवी दुर्गे जगत जननी तुम्ही मां मंगलकारिणी दुर्गे दुर्गे दुर्गति नाशिनी महिषासुरमर्दिनी जय मां दुर्गे 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 दुर्गति नाशिनी महिषासुरमर्दिनी जय मां दुर्गे ऐगिरि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे श्रीकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मुखशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते St. Joseph English High School is feeling grateful that I got a chance to
share my words of thanks on this special moment. First of all, I would like to thank all our guests who spend their precious time with us. Now, I would like to thank all our teachers who worked hard for this event, as this program was planned in a very short time. Even some of them got only one day, that was yesterday. Then it's time to be grateful to our participants whose effort made this event successful. Thanks to all the students, teachers who are here to witness this program. नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार, 9 दिनों तक देवी के 9 विभिन्न स्वरूपों की आराधना का त्योहार। 9 दिनों में जहाँ एक ओर शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, वहीं आपने देखा होगा कि जगह जगह रामलीला आयोजित होती है। राम के जीवन को नाटक के रूप में दिखाया जाता है। ऐसा क्यों है कि एक साथ हम देवी की भी पूजा करते हैं और राम को भी याद करते हैं? इसके पीछे एक छोटी सी घटना है जो मैं आप सबको बताऊंगी। शायद कुछ लोगों को पता भी होगा और नहीं भी पता होगा तो आज की सीख के रूप में इसे याद करिएगा। श्री राम जब युद्ध के लिए तैयार हुए, जब उन्हें रावण से युद्ध करना था, तो उन्हें पता था कि रावण बहुत शक्तिशाली है, साथ ही साथ वो ज्ञानी भी है, और इससे भी बड़ी बात कि वो शिव का बहुत बड़ा भक्त है। राम ये जानते थे कि रावण को हराना इतना आसान नहीं है। तो राम युद्ध पर जाने से पहले देवी दुर्गा की पूजा करने लगे, क्योंकि शक्ति की स्वरूप दुर्गा मानी जाती है। और ये पूजा करने का संकल्प जिस दिन उन्होंने लिया, वो दिन अमावस्या था। जिस दिन उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी कोई पूजा करूँगा, वो दिन अमावस्या का दिन था। आश्विन महीना का अमावस्या जो शुरू होता है, तो इसलिए उस दिन वो महालया के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगले दिन से राम जी हर दिन 108 कमल के फूल से देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करते थे। पहला दिन जिस दिन उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं हर दिन 108 कमल के फूल देवी को चढ़ाऊंगा, वो दिन कलश स्थापना होता है जिसे हम लोग मनाते हैं। इसके बाद अगले 8 दिनों तक राम जी हर दिन 108 कमल के फूल चढ़ाते रहे, देवी को पूजा करते रहे। जब राम पूजा करते थे, जितनी देर आराधना करते थे, तो उनकी आंखें बंद होती थी, बंद आंखों से वो पूजा करते थे। अब जब 9वां दिन आया तो राम जी ऐसे ही पूजा पर बैठे हुए थे और वो पूजा कर रहे थे। जब वो फूलडाली में जिसमें फूल रखते हैं, उसमें अपना हाथ बढ़ाए कमल के फूल लेने के लिए, एक एक कर फूल चढ़ाते जा रहे। 107 फूल चढ़े, उसके बाद उनको फूल नहीं मिला। 108वां कमल फूल उन्हें नहीं मिला। हुआ ये था कि देवी सोची कि ये श्री राम जो स्वयं ही विष्णु के अवतार हैं, जो इतने शक्तिशाली हैं, वो खुद को भक्ति के रस में डुबोए हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो देखो कि इनकी भक्ति कितनी सच्ची है। वो क्या सचमुच मेरी आराधना कर रहे हैं या बस यूं ही? तो देवी ने क्या किया था कि उन्होंने एक कमल के फूल को छुपा लिया था। ठीक है, अब राम जी 108वां फूल ढूंढ रहे हैं, आंखें उनकी बंद हैं, उन्हें फूल नहीं मिला। उन्होंने झट से अपनी आंखें खोली, इधर उधर देखा, फूल नहीं मिला। अब राम सोच रहे हैं कि मैंने तो 108 कमल का संकल्प लिया था और अब तक मैंने सिर्फ 107 ही कमल चढ़ाए हैं, तो अगर मैं आखिरी कमल नहीं चढ़ाऊं तो मेरी पूजा तो अधूरी रह जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें याद आया कि उनकी माँ जो कौशल्या थी, वो उन्हें राजीव लोचन कहती थी। राजीव लोचन मतलब जिसकी आंखें कमल के समान हो। तो राम जी ने सोचा अब अगर मुझे कमल नहीं मिला तो मैं अपनी एक आंख ही समर्पित कर देता हूँ, क्योंकि माँ कहती है कि मेरी आंखें कमल के समान हैं और देवी दुर्गा भी माँ का स्वरूप है, तो वो मेरी आंख को कमल के रूप में जरूर अपना लेंगी। ये सोचकर राम जी अपने तरकश से एक तीर निकालते हैं और उसे अपनी आंख तक ले जाते हैं, अपनी आंख निकालने के लिए। जैसे ही वो तीर आंख को टच करता है, छूता है, तो देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट होती हैं और उनको कहती हैं कि ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यही देखना चाहती थी कि स्वयं विष्णु मेरी भक्ति में कितने सच्चे हैं और वो मैंने देख लिया। फिर उसी दिन वो 9वां दिन लगता है, देवी सिद्धिदात्री के रूप का पूजा हुआ रहता है। देवी सिद्धिदात्री राम की सिद्धि से खुश होती है और उनको वरदान देती है कि कल के दिन आप रावण पर
पर विजय पाएंगे और वो दशमी का दिन होगा, इसे लोग विजयदशमी के रूप में मनाएंगे। और इस तरह से राम जी जो है वो अपनी पूजा पूरी करते हैं और रावण को मारते हैं। इसी कारण 10 दिन तक हम देवी की भी पूजा करते हैं और राम की भी आराधना करते हैं। ठीक है।